in the first match of the TSL have won the match with Sipai Jala. Can you imagine the kind of sportsmanship that they have showcased 1-0 during the first match? It was really awesome, and that's why West Vikings is is dangerous at some point of time. But today I somewhere or the other they have been missing out the opportunity, and probably this day is this day today at Komalung again may showcase something different. But the goal that was, the ball that was shot, which actually could have been a goal a few minutes back. Let's talk of that. As you have already mentioned, if the ball would have hit the middle portion of the leg, would have actually swing the ball inside the goal post. But somewhere or the other, the ball did not hit in the right point, and the ball went outside the goal post. So, if given an opportunity like this, West Vikings will not leave the chance. But again, here this is a dangerous situation. But again, this did not go straight into the goal post, and it was really good on the part of the defenders. The defending team somehow went inside the D box, and you see the replay out there how the defender went and tried playing around with the ball, the person who's kicking the ball, and the right wing striker over there. And so yes, but from the previous half that we see, now the West Vikings are moving really strong and aggressive. And also let me analyze on this part. Let us also get to know more. Mithun and Soramita, if you agree with me, always the first score or the first goal that's been shot or the goal that's been shot is on to our left. Even yesterday between the South Lions and Dolai Antlers, the first goal was shot by Dolai Antlers from my right to the left goal post. And so that's what I would say. Even today it's almost the same. But it is to see that if the West Vikings will be able to score their first score at least in another few minutes time. It's already 56 minutes past, and it's important for them to shoot at least one goal at this point of time. हम आप कल की बात करें धलाई की, तो कल धलाई का एक वो था, एक प्लानिंग जो था ना, वो ये मैंने सुना है कि उन लोग ग्राउंड शॉट खेलेंगे. कल पूरे मैच में उन्होंने उठा के शॉट एक भी नहीं खेला है, ग्राउंड शॉट खेले. Absolutely. और वो शॉट से उनको ये सफलता मिली है, और आज ये चीज मुझे गोमती ग्लेडिएटर्स में देखने को मिल रहा है. Yes. और ये चीजें अच्छी चीजें हैं. आप अगर बॉल को ग्राउंडेड खेलेंगे तो आपके प्लेयर्स को बॉल मिलेंगे. अगर आप उठा के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं आप दिशा भटक जाते हैं. करेक्ट. और यही चीज आप आगे लेके जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. और आगे आज जो खेल है उसका दर्शक देखिए, दीर्घा में देखिए, हमारे पीछे देखिए, वह छत पे देखिए, स्टेडियम पे देखिए. मतलब वो जो लवर्स है ना फुटबॉल के, वो आज आए हैं इस फुटबॉल का आनंद लेने के लिए. आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम. Actually, where there is football, there is lots and lots of fans, and also the football lovers. There are many areas like this where there are lots and lots of football lovers. You talk of the Gomoti area, you talk of the south, and you talk of the north and Dalai areas. There are lots and lots of football lovers. Today we saw here in West Tripura as well, in Komalung, the kind of football lovers, and it's important at this time that they there are more football lovers, because then later there will be many more new players that will come. And so even from this kind of series or leagues that are being played in Komalung Stadium, there will be many new football players that will come up, and this is the reason why TTAADC has taken this initiative. And so it is always commendable, it is always appreciable, and we really appreciate the government of TTAADC. Sportsmanship, one kind of? Yes. एक तरह का स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए हमें. Yes, that's right.
और ये स्पोर्ट्समैनशिप ही हमें आगे लेके जाएगी, त्रिपुरा को एक पहचान दिलाएगी आगे चलकर। Correct. Or- There are many in the field of in the field of cricket, but Northeast basically is known Yes. for football lovers. Yes, correct. and so this is how more and more people will come and love football. Oh, And there नहीं, goes आप इस another तरह से- signal from the ref. A very harsh decision by the and probably this is the विराज second. वर्मा, Yes. येलो कार्ड, And हाउ इज इट so पॉसिबल? आप इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? हाँ? that- आप that- एक सूझबूझ के प्लेयर है और आगे भी आप इतने अच्छे खेले हैं। that's what, and I think the players should really think of their career as well. You getting a yellow card at this point of time will not make any sense for the ground, for the team. So you should always be careful. You should be always careful while you're playing on the ground, not trying to mess with the players and the referee out there on the ground, because the ref out there is really. And this is a dangerous situation again. Lucky enough, the defense out there is strong enough and could somehow save the ball. गुड स्पोर्ट्समैनशिप मिल्टन जी, ये सौरभिता स्पोर्ट्समैनशिप इसे कहते हैं। देखिए कितना अच्छा पास था, भले वो डिलीवर नहीं हुआ गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन वो पास गजब। देखिए फिर से वही बात, 21 नंबर, और ये कोई प्लेयर नहीं है वहां पर। एक प्लेयर अगर होते अभी ये गोल तय था। चलिए, वो कहते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, यहाँ पर प्लेयर को जागने की जरूरत है। अभी जाग जाइए अभी, क्योंकि मौके पर मौके। अभी दो मौके, अभी दोनों ही मौके मिस। अभी उनसे ज्यादा जो एग्रेसिवनेस है वो ऑडियंस के ऊपर है, कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वाटर ब्रेक, और जिस चीज पे हम बात कर रहे थे, देखिए अच्छी खेल, यही भावना, खेल भावना बनी रहनी चाहिए। और किस तरह से पासेस आज हमें देखने को मिले हैं, खासकर गोमती ग्लैडिएटर्स का। सौरभिता, आज ये जो गेम है ये डेफिनेटली हिस्टोरिक है, क्योंकि एक तो सेमीफिनाल है, सेकंड सेमीफिनाल है। इसमें से जो टीम जीतेंगी वो टीम फाइनल में अपना स्पॉट डेफिनेटली बना लेंगी। एंड सेकेंडली अगर आप देखें यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में गोमती ग्लैडिएटर्स लीड कर रहे हैं ओनली 1 पॉइंट से। जो डिफरेंस है ना, गोल डिफरेंस, आप कल का मैच देखिए, कल धलाई एंटलर्स ने एटलीस्ट अभी इस क्षण तक एटलीस्ट 2 गोल कर लिए थे। 3 गोल से वह जीते थे 3-0 से, पर एटलीस्ट अभी तक 2 गोल हो गए थे। तो गोमती ग्लैडिएटर्स को अभी एटलीस्ट बढ़ोतरी लेने की जरूरत है, अगर उनको अपना जो जीत है वो निश्चित करना है, वरना टाई तो किसी भी समय हो सकता है। क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स, एक चीज है कि आपने सोरो खाइबा में एक प्लेयर थे ना गोमती ग्लैडिएटर में, हाँ जी, जॉन जमातिया जी, बयार जी, और वक्तो जमातिया जी, ये सब प्लेयर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। आपने बिल्कुल। शायद इनको बिठा के रखा है, तो कहीं ना कहीं ये सोची रणनीति समझी है। बिल्कुल रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटजी है फॉर श्योरली। ये जरूर है, इसमें भी कोई षड्यंत्र कह सकते हैं अगेंस्ट टीम के लिए, ताकि ये अच्छा वह खेल पाए, एंड जो बेहतरीन जिनको मौके मिलने चाहिए उन प्लेयर को मौके तो मिले। आखिर के 20 मिनट में क्या वो तुरुक का पत्ता जिसको कहते हैं वो यूज करेगी गोमती ग्लैडिएटर? गोमती ग्लैडिएटर्स को आई थिंक अभी जरूरत नहीं है, पर आई रियली थिंक कि वेस्ट वाइकिंग्स को जरूरत है अपने कुछ कह सकते हैं ना बादशाहों की, जो इस गेम को चेंज कर सके एंड एटलीस्ट टाई तक ये जा पाए। क्योंकि अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी समय है, क्योंकि गोल डिफरेंस जस्ट 1 का है ना। अगर गोल डिफरेंस चेंज हो जाता है, वो 2 हो जाता है, तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा, पर अभी सिर्फ 1 है गोल डिफरेंस। दे आर स्टिल हैविंग दिस चांस कि वह जीत सकते हैं, वह फिनाले में जा सकते हैं, अपना स्पॉट बना सकते हैं। और आपको अपना करियर बनाना हो तो कभी रेफरी से चर्चा कीजिए, जानिए फुटबॉल क्या है, वो रेफरी आपको अच्छा से बताएंगे। क्योंकि जो रेफरी आप देख रहे हैं ना, एक जैसे सुशील देवर्मा जी हैं, नागेंद्र जमातिया है, हमारे सुशील जी है, इनसे बात कीजिए, आपको फुटबॉल का हर एक तर्कश जो है ना वो मजा आएगा। ये बॉल देखिए, जहां जाना चाहिए पोस्ट पे वो चला गया गैलरी पे, तो मतलब बता सकता है कि खेल किस जगह पे पहुंचा है अभी। आज तो उम्दा जगह में पहुंचा है ये खेल। जी हाँ, और आखिर के करीब 19 मिनट बचे हैं, और ये 19 मिनट में कुछ करामात कहीं ना कहीं से आएगी। ओ स्लिप हो गए वहां गोमती के प्लेयर।
अच्छा, आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है मिथुन जी, वेस्ट वाइकिंग्स में आज बिलाश खेल रहे हैं, ऑलरेडी बिलाश हैं, अगर हम देखें बीरू देबरमा हैं, अगर हम देखें किरिजे स्टॉर्म हैं, टैम्बो हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं, सैम्यूल हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर नजरें टिकी की हुई हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, ये आज गोल क्यों नहीं मिल रहा है उनके द्वारा? देखिए हमने चेंजेस किए हैं, यहाँ पर बॉयार को आपने बिठा दिया है, सोरोखाई भाई शायद यहाँ पर पेनल्टी के लिए बात हो हाँ वो आपकी बात देखिए सराखों पर है, लेकिन ये चेंजेस जो है ना ये कुछ कारण के लिए डाला गया है। अभी देखिए आप, तो फिर ये बातें चल रही है डिस्कस की, ये पेनल्टी क्या है, ये किस तरह यहाँ ये देखिए शिवज्योति सर यहाँ पर गलत, ये ये हाथापाई ना हो, आप रेफरी की बात सुने, रेफरी की बात आप सुने, अदरवाइज आपको रेड कार्ड या येलो कार्ड इशू हो सकता है और ये सही नहीं है इस क्षण में। देखिए ये डिस्कस चल रहा है रेफरी के बीच कि क्या वहां पर सही में क्या वो हुआ था जिसकी हर कोई यहाँ पर शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जो गोमती के फैंस हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ एक चीज है, यू डू नॉट हैव टू आर्ग्यू राइट नाउ बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो यहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये देखिए यहाँ रिप्ले देख लीजिए आप, रिप्ले देखिए आप, रिप्ले देखिए आप, कोई हैंडबॉल यहाँ पर जी शायद ये रेफरी डिसाइड करेंगे, हम जज नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तैबू थे और यहाँ पर अभी भी उसमें डिस्कस चल रहा है फिलहाल, एग्रेसिव है कि देखिए सेमीफाइनल है, ये तो होना है। अभी एक्चुअली मेन बात है मिथुन जी, अभी दोनों ही टीम अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहती है। जी हाँ बिल्कुल, तो मेन देंगे एक भी पोजीशन छोड़ेंगे तो फिनाले तक जाने के उनके चांसेस कम हो जाएंगे। जी हाँ, और खेल तो इसी जगह पहुंच गया ना कि आज जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, आज जो जीते वही उन्हीं को वो स्पॉट मिल जाएगा और ऐसा स्पॉट जिसके लिए इतने दिनों से वे मेहनत कर रहे थे। हाँ, आज जीते तो अपने पल्ले, नहीं जीते तो उधर थल्ले। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से किस बात पे यहाँ हाथ उठा रहे हैं आप, क्या अपील क्या करना चाहते हैं आप? देखिए आप रिप्ले भी देख सकते हैं यहाँ पर, शायद हम जो हमारे दर्शक वो रिप्ले देख पा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मिल गया, वहां पर गार्ड्स बिठा क्या, और ये लक्षण ठीक नहीं है। अभी देखिए शॉट, अभी अगर नेथन ये बढ़िया जो प्लेयर्स हैं, ये अगर अभी इस मौके का सदुपयोग कर पाए तो यहाँ शायद थोड़े आर्ग्यूमेंट्स अभी इस पॉइंट में अगर हो रहे हैं तो आपका समय भी व्यर्थ हो रहा है मिथुन जी। नहीं देखिए वो आर्गुमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्लेयर को सजाया गया है ना, वहां पर कतार पे 5-6 प्लेयर्स को गार्ड दिया गया है और वहां वो उसका डिस्टेंस बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा पीछे, या वो आगे आ गए थे शायद, उनको वो रेफरी तय करते हैं। जब हमारे शिवज्योति चक्रवर्ती है वहां पर रेफरी, मेन रेफरी, वो डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ रहना है, वो कदम से मापा जाता है। आज तो 8 कदम को बोल रहे हैं कि 9 कदम, जी हाँ 10 कदम की दूरी पे होना चाहिए जी। यहाँ देखिए, यहाँ अभी देखिए ये जो पल है, ये पल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये खेल में देखा नहीं गया अब तक। Yes. अब तक इस खेल में ऐसा खेल देखा नहीं गया। आपको पेनल्टी मिला है तो क्या इसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? और यहाँ जो गोमती ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर एक भड़ास है कि ऐसा कुछ ना हो कि हमारी टीम हारे, और ये बढ़िया मौका है। एंगल सही अगर बैठ गया ना, गोलकीपर को देखिए आप, ध्यान रखिए गोलकीपर पर, और ये एंगल देखिए, जी हाँ मिस, देखिए ना तो मिसाले सनम, ना ही मिला कुछ यहाँ पर आपका कुछ, यहाँ पर दर्शक खुश, सब खुश। यहाँ पर दर्शक ने बोला अगर था ही नहीं तो पीछे हमारी आवाज आ रही थी, वैसे हम नहीं बोल रहे, दर्शक ही बोल रहे थे, आवाजें आ रही हैं। दर्शक ने बोला वो हैंडबॉल था ही नहीं। बिल्कुल, चलिए वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली। रिप्ले देखिए कितने दूर से बॉल गई है। एक बार रिप्ले सब कहेंगे हमारे कैमरामैन से, एक बार रिप्ले दोबारा दिखाया जाए। आप इस खेल को देखिए, जिस तरह से ये खेल जा रहा है ना, एग्रेसिव खेल जा रहा है और दोनों ही टीम कोई अपनी प्रतिद्वंदिता छोड़ना नहीं चाहता है। सोरोमिता बिल्कुल क्योंकि अरे यहाँ छोड़ने वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर मैं अभी क्लास मॉनिटर हूँ और मुझे अचानक से मुझे दूसरे क्लास में मौका मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं?
मुझे मुझे वो मौका मिल रहा है, अभी वह सेमीफाइनल फिनाले में है, मुझे मौका मिला है मैं फिनाले तक जा पाऊं, तो मैं वो मौका क्यों छोड़ूं? अच्छा, वो थ्रो फेंकने के लिए बाहर आ गए मैदान के, 13 नंबर के जर्सी वेस्ट किंग्स के। हाँ, विलास विलास जी थ्रो करके गोल पोस्ट के अंदर डाल देंगे वो। मौका 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 हाँ। मौका, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। और बॉल को तो गोलकीपर हाथ से मत छोड़िए, आज बाहों में जकड़ के रखिए। बाहों में ना जकड़े, पैरों से ऐसे अकड़ के रखिए कि पैरों से वो छीन गोल लेंगे, हो। पैरों से छीन लेंगे, हाथ में रखिए, कोई लात नहीं मारेगा। ना ना, हाथ में अगर रखेंगे तो वो फुटबॉल नहीं होगा, बट डेफिनेटली अभी गोलकीपर के लिए अलाउड है वो। पासेस ऐसे हो अभी कि या तो आपकी बढ़ोतरी हो या होने ना दे आप, क्योंकि अभी लगभग मिथुन जी जरा समय देखिए, समय की घड़ी रुक नहीं रही है और जस्ट अभी लगभग 13 मिनट बचे हैं। 13 मिनट में क्या ये गेम चेंज होगा? 13 का फेरा है सौरमिता, ये 13 के फेरे में जो गिरा ना वो बहुत खतरनाक होता है। क्या यहाँ पर गोल हमें देखने को मिलेगा? 1-0 पे ही सिमट जाएगी गेम, लेकिन वेस्ट विकिंग्स के बारे में हमें पता है। यहाँ पर क्या होगा? तान दीजिए सीधा। ताने तो हैं लेकिन पैमाने पे नहीं बैठा सीधा। मिल्टन जी, ये खेल जिस तरह से एग्रेसिव होते जा रहा है, दर्शक की जो हर्षोल्लास है वो आप देख सकते हैं। जरा बताइए कि क्या भली परिचित है खुमलुम से, आप क्या कहेंगे इस खेल को लेकर? Actually, Mithun and Soromit, let me tell you that Komalung has already burned up. The energy has already, started, and you see the kind of gameplay the West Vikings playing now. Really showcase the kind of strength they have saved in the first half, and now they are actually playing really aggressive match. And so that's how you should be, playing, saving your energy and your stamina. And so it is important. It is important for the West Vikings now to at least make their first score on the scoreboard, so that you become one equal. And so you see the defense out there. It's a throw-in. The defense, will not be able to save the ball. Will have to definitely shoot it outside the boundary. And so that's how the West Vikings defending team are now fighting. But most importantly now the Gomoti Gladiators have been playing safe game, and will definitely try to waste as much as time as possible, because this is also important for them, that you waste the time and win the game. And so there it is. There is a foul kick. Let's see what happens. Let's see what happens later today in the match. But yes, the team West Vikings will have to showcase their energy to win the match today. Otherwise, they will go 1-0. Again, again the defense from the part of the Gomoti Gladiators shooting it outside the boundary, and so again it's a throw-in for the West Vikings. West Vikings trying their best to make their first score on the board, but still have to open their account on the scoreboard. So again, it's a long shot, but somehow missed the goal post. That's how it should be. That's how the shots should be, and it is always appreciable that today the teams have been shooting really strong, and West Vikings will have to work out and play more of a good sportsmanship. पाजी हुण मौका जिथे जिसे मिल गया वो ही जीतते हैं। यहाँ आप देखिए मौके का जो फायदा आज पूरा, मुझे लग रहा है ऐसे कि गोमती ग्लेडिएटर्स के साथ पूरे ऑडियंस जैसे बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही ऐसा है कि गोमती ग्लेडिएटर्स के साथ आज शायद किस्मत भी उनके साथ है। आप देखिए इतने मौके मिस हो रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स के एकदम पास से।
गोल पोस्ट के एकदम पास से। ये नसीबों का खेल है, ऐसा लग रहा है कि आज पूरी नसीब, टीम की पूरी नसीब लेकर आई है कि आज हम इनका गोल होने नहीं देंगे। हम गोल ना कर पाए, बढ़ोतरी ना ले पाए, कोई बात नहीं, पर हम वेस्ट वाइकिंग्स, हमारे जो ओपोनेंट है, उनका गोल होने नहीं देंगे। पर वेस्ट वाइकिंग्स रुक नहीं रहे हैं पाजी, क्या लगता है आपको? लगता कुछ नहीं, देखिए मौके दर बदर छूटते जा रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स के, और ये बिलाश के पास मौके बन रहे हैं। यहाँ पर बीरू देवबर्मा को, जो अच्छे प्लेयर हैं बिलाश बीरू, आप उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो खेलने का टेक्निक है, उसको आज मेरे को सही तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बन तो रहा है कि बनते बनते बिगड़ भी रहा है। तो आप मौके बनाइए, और जिस तरह से आज गोमती ग्लेडिएटर हावी है, वो तो कहीं ना कहीं ये सूचक बनते जा रहा है कि आप इस खेल को किस भावना से अंदर घुसे हैं, और जीत के लिए ही दोनों टीमें लड़ रही हैं। और देखना है आखिर के पलों तक इस खेल में क्या होता है। बाकी बचे 8 मिनट, एक्स्ट्रा टाइम देखना पड़ेगा कितना मिलता है। और यहाँ पर थ्रो जो है वो मिला है वेस्ट वाइकिंग्स को, तो क्या ये थ्रो इन कुछ करेगा, मौका बनेगा, या फिर कुछ गड़बड़ होके जाएगा यहाँ पर, या फिर चांस दे देगी गोमती ग्लेडिएटर को। यहाँ पर फिर से थ्रो इन आ गया है। देखो बता रहे हैं कि देखिए आप थ्रो जो है ना, वो सही जगह हो भी नहीं रहा है अभी। इतने थ्रो इन हुए ना अभी कि इसी जगह पे से 4-5 थ्रो हो चुके हैं, तो बॉल मैदान के बीच या डी सर्कल के डी बॉक्स के इधर कहीं पहुंच नहीं रही है। अच्छी थ्रो यहाँ पर तंबी द्वारा, लंबा शॉट सही पैमाने पे, हेड यहाँ पर अच्छी रोका, पास बढ़िया, और यहाँ पर क्या दोनों टांगों के बीच से उठा दिया था गेंद को वेस्ट वाइकिंग। हैंडबॉल, क्या फाउल किक मिलेगा शायद यहाँ पर। वो छूके फिर से बॉल को उठाए थे, देखिए किस तरह से बॉल को लेके एकदम अजगर की तरह सिमट गए थे बॉल को लेके नीचे। आज बात है परफॉर्मेंस की, आप दिखाइए परफॉर्मेंस। गिर गए वहां पर, अच्छी ट्रिप के उसको, बॉल को ट्रिप करके किस तरह से उठा दिया। क्या अच्छी स्टॉपर की भूमिका निभाएंगे आज दोनों ही टीमें? नहीं, अब तक तो आउट का ही प्रक्रिया चल रहा है कुछ पलों से। छोटे बच्चे मैदान पे किस तरह, व्हाइट शर्ट में देखिए आप, उस तरफ छोटा बच्चा फुटबॉल के साथ खेलकूद, यही वातावरण चाहिए, यही मौसम चाहिए मिल्टन जी। That's what it's important to appreciate such people, because then they will definitely grow learning what football is all about and how it's been played on the ground. And so the children nowadays will definitely be able to catch how it is being played on the ground. So that's why children need to be encouraged. नहीं मिल्टन जी, हम जो शाम को निकलते हैं ना, तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे इस मैदान पे आते हैं खेलने के लिए, वो बहुत अच्छा है। That's what. That's how the youngsters will learn and grow in the days to come. And sooner or later, these children will definitely become some of the best players. You see how the ball has been tackled out here by the team, the Gomati Gladiators. Now, if there is a long shot, it's going to be really, really awesome. But yeah, again, it's really far away from the goal post, and so there is a foul kick over there. जी बिल्कुल, और ये मौके, जब ये मौका मिला था ना, वो मौका लेना चाहिए था, क्योंकि आप उस जगह पहुंच गए थे, उस डायरेक्शन पे। वो किक आपको खुद कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तब तक वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर जम गए थे, उनके डिफेंडर्स। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट बचे हैं, लेकिन हाँ, ये करिश्मा कुछ भी हो सकता है, ये वाइकिंग्स की टीम है, ये कुछ भी कर सकता है। ये आखिर के पलों में ही अपना पूरा खेल दिखा देते हैं। यहाँ खेल दिखाने की बात नहीं, यहाँ डिफेंडर्स देखिए आप, गोमती ग्लेडिएटर्स अभी पूरी तरह से यहाँ ये सोच के रखा है उन्होंने, करना पाए तो करने भी ना दे, करेंगे नहीं पर करने भी नहीं देंगे। हम गोल ना कर पाए तो कोई गम नहीं, हम तुम्हें भी कोई गोल लेने नहीं देंगे। यही रणनीति है अभी इस आखिरी 5 मिनटों में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक सीटी बजी, एक आपस में टकरार। देखिए यहाँ पर, बाप रे, यहाँ पर तो कई परिस्थितियां उफान मारती हुई, यहाँ पर गोलकीपर भी आ गए, यहाँ पर बातें चल रही है। गोलकीपर देखिए, तब भी समझा रहे हैं कि आप गोल पोस्ट पे जाइए, यहाँ पर रेफरी हैं, और रेफरी देखिए आप, एक चीज है यहाँ पर, अब रेफरी का जो डिसीजन है वो मेकर है। अब येलो कार्ड,
येलो कार्ड आ गया यहाँ पर शिबू ज्योति चक्रवर्ती की जेब से। चलिए, आज बहुत सारे येलो कार्ड आए हैं और इस खेल में अब देखना है कि ये शॉट जो होगा ना, क्या उसमें कामयाबी मिलती है वेस्ट वाइकिंग्स को आखिर के 3.5 मिनट में, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हम बताएंगे आपको कि मिलता है कि नहीं, कि रेफरी वहां पर अपना साइन बोर्ड ऊपर करेंगे और बताएंगे। ऊपर बॉल, अच्छी हेड, यहाँ पर अच्छी डिफेंस, बहुत बढ़िया। पीछे से बैक हुक करते हुए बॉल को लेके जाने वाले प्लेयर बिलास देवर्मा को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से 14 नंबर के जर्सी गोमती ग्लैडिएटर्स, अच्छी पास, यहाँ पर लंबा शॉट, यही चाहिए, जरूरत थी वहां पर। लंबा खींच के तान दिए, वहां पर कौन है, तंबी जी खड़े हैं वहां पर। और ये देखिए, वाह बढ़िया शॉट, ये देखिए आखिर के पलों में ये डाल दिया है। 3 मिनटों में ये गोल, ऐतिहासिक गोल। मिथुन जी, द लास्ट मोमेंट आई टोल्ड यू, वेस्ट वाइकिंग्स का आखिरी 3 मिनट। ये देखिए, रिप्ले देखिए जरा, वर्ल्ड क्लास बोल सकते हैं एक तरह से इसको। जिस तरह से एकदम साइड लाइन से उठा के बॉल को डाला है उस गोल पोस्ट के अंदर, पैमाना बैठा के मारा है, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने एक कॉम्पस से वो बनाया था। जो शांति मिली है अभी, जो ऑडियंस वेस्ट वाइकिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज पेनल्टी होगा। मिल्टन जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? और रिप्ले देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, किस तरह से ये गोल दागा गया है। किरीज एस्टोन एम्बेंबे, वही ताकत, वही दिमाग, वही नजरिया जो हमने उस मैदान पे देखा था। आखिरी के 4 मिनट में 3 गोल। It's the same kind of game spirit that's been showcased today, and Tambe really doing it well. And you see today, not probably because it's already one. Yes, it's one each, and so today it's going to be a penalty shot. You can see the replay how Ntambe has shot the ball. You see with his right leg. That's a world-class shot, my friend. That's a world-class shot. No doubt. और वो उनके ऊपर हमारी नजरें थी बिल्कुल मिल्टन जी, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। And that's what we've been mentioning so far, even from the beginning, that Ntambe, Samuel, these two guys, these two people have been, a crucial player for West Vikings so far till today. And today also they have done the same kind of a game. And so it's important today. Who's going to win the match in the penalty? Probably at the end of the match. It's already 79 minutes past, and probably that there is another 3 minutes, addition. So it's important in the last 3 minutes or so. Who's going to score another one or two? And 2-minute extension time, and so let's see what happens at the end of the match today. But yes, up till now it is draw so far. But yes, again there's an injury out there on the ground. Probably the mat team will be called in. Let's see what happens. But yes, absolutely. The referee on the ground is active enough to take care of the situation and handle it so well. And so it is really important now who can make the final score at the end of the match and will win the match, or is it going to be a draw today? मारिए तान के सीधा गोल पोस्ट की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल गलत शॉट था। आप इतना ऊपर से नहीं मारना चाहिए था आपको, क्योंकि अपने प्लेयर थे वहां पर, आप गोल पोस्ट मारना चाहिए था। भले गोलकीपर उसे रोक ले, अगर छूट जाती तो आपके प्लेयर वहां आगे जा सकते थे, जो आपके स्ट्राइकर है वो जाके मार सकते थे, उसको मौका लेना चाहिए आपको। लेकिन गोमती ग्लैडिएटर को अभी अपना एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ेगा। मैं पहले भी कह रहा था कि आखिर के पल ही बताएंगे कि जीत किसके झोली में जाता है। बिल्कुल वेस्ट वाइकिंग्स, वो हमने भी कहा था, तब से हम सहमत थे इस बात से कि ग्लैडिएटर्स अगर बढ़ोतरी नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स जाने ही जाते हैं उनके आखिरी मिनटों के लिए। आखिरी मिनट में ये देखिए जरा किस तरह से ये बॉल को पास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ी भिड़न हो रही है प्लेयर्स के बीच, पर वही देखना है इन आखिरी मिनटों में क्या होने वाला है। मिथुन जी, आई एम ऑलमोस्ट श्योर
श्योर कि पेनल्टी आज होगा, आज हिस्ट्री क्रिएट होगा ये पेनल्टीज के साथ कि किसको किसको मौका मिलेगा। आज मौके पे चौका कौन लगाने वाला है, इसके ऊपर आज गेम डिपेंडेंट रहेगा। देखिए बिलाश दबरमा, बीरू दबरमा जहां पर वहां मौजूद है, दोनों प्लेयर जो पास देते बहुत अच्छा है, तो कैसे मिस हो सकता है? आखिर का खेल तो उन्हीं के 4-5 कदमों में ही है, उनके पैर। और ये मौका, और ये शायद हो भाई साहब गजब, भाई साहब ये मौका बनते बनते रुक गया है कहीं, और खेल बच कुशन, शायद पेनल्टी देखने को मिलेगा हमें मिल्टन जी। But that's the end of the match. That's the end of the match, and probably let's see what happens, what the referee decides. Probably there's going to be a 10 minutes or 15 minutes of time extension. But let's see what happens. Let's see the replay, how the ball has been shot and how Kangshu saved the ball. You see, jumped for the ball, picked the ball, and beautifully saved out there. चलिए अभी पता चलेगा गोलकीपर कितने सजग, सतर्क, बुद्धिता का परिचय और वो टेक्निक समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां तक हमें लगता है कि अगर 7-7 गोल होंगे शायद, तो उसमें बीरू दबरमा, किस एस्टोमैन तंबी, जैम तैम्बो, सीपीयू रियो और डोंकोर, ये सबको मौके मिलेंगे पक्का, मुझे लगता है ऐसा। और वहां पर शायद बुले मनी को जमातिया, भक्ता, सुमन, खोचांग और गोविंद, ये सबको मौके मिल सकते हैं। अभी खेल जो है जरा सीरियस हो गया है, मैटर इज वेरी सीरियस सोनमिता। Too serious. I mean, like we can't even take that much serious it is. Like अभी वो मौका है, जिस मौके का हम इतने पूरे टूर्नामेंट से इंतजार कर रहे थे। पूरे लीग से पूरे लीग में, पूरे टूर्नामेंट में हमें लगा था कि ऐसा शायद मौका नहीं आ पाएगा। ऐतिहासिक पल, पर ये ऐतिहासिक पल आ गया। आप रिप्ले देखिए जरा, ये अगर सेव नहीं होता हमारे तो पास फिर विनर रहते, पेनल्टी भी ना होता, हमारे पास विनर रहते। पर अभी ये जो क्षण है, ये कह सकते हैं अभी शायद जो राम नाम जप रहे हैं, जो जीसस को जप रहे हैं, जो माशाल्लाह मतलब कह सकते हैं हम यूनिवर्स को जो कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स जो कहते हैं, वो जो कहते हैं कि हाँ अभी हमें जरूरत है इस पॉजिटिव वाइब्स की, अभी वो चाहिए। क्रॉस फिंगर्स मैं ऑलरेडी मेरे 5-6 क्रॉस फिंगर्स हैं, मैंने अपने पूरे हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ है कि क्या अभी होने वाला है। और मुझे लगता है अभी क्राउड चिल्लाइए, एक बार चीयर अप कीजिए इस जीत का। जो भी जीते एक जश्न होना चाहिए आज इस माहौल में, जीत किसी भी की हो, जीत खेल की होनी चाहिए, आज फुटबॉल की जीत होनी चाहिए। आप क्राउड को चिल्लाने के लिए कह रहे हैं, हम चलिए क्राउड के पास ही चलते हैं, जरा जानते हैं कि उनको आज क्या लगता है। हमारे साथ यहाँ बेहतरीन क्राउड है आज, जिनमें 2-3 हमारे दर्शकगण हैं जो काफी देर से बोल रहे थे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ एक क्राउड में बेहतरीन जेंटलमैन है। आप सबका नाम पूछ लेना चाहते हैं सर। जी, का नाम? मेरा नाम बसंत जमातिया। बसंत सर, क्या करते हैं सर आप? हाँ, मैं करता हूँ सेल्फ। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो आज का मैच कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। Whom you are supporting? किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप? तो गोमती ग्लैडिएटर्स। गोमती ग्लैडिएटर्स को। तो क्या लगता है इस आखिरी मिनटों में क्या गोमती ले लेगा ये मैच, या फिर कहीं ना कहीं कोई चूक होने के चांसेस है? सर फिर से We'll win the match. Okay, they are saying that सपोर्ट किसे कर रहे हैं? सपोर्ट किसे? गोमती ग्लैडिएटर्स, वेरी गुड। और आज इनके जो आशा है गोमती को लेकर शायद सही खड़े उतरे। कौन जीतेगा? गोमती। वाइकिंग्स को कौन सपोर्ट कर रहा गोमती है? जीतेगा। चलिए, कोई वेस्ट विकिंग्स की तारीफ, कोई गोमती की तारीफ। बिल्कुल। तो आज ये निर्णायक मैच है और पूरे लीग का सबसे एंटरटेनिंग गेम आज है। आज जीत किसको मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कैमरा सब अब एक ही गोल पोस्ट की तरफ। पूरे लीग का आज सबसे खतरनाक इवेंट जिसको कहेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दर्शक कह रहे कि हुइसल बजेगा हम जीतेगा, और हुइसल फिनिश हम ही जीतेंगे। तो ये जीत उन्होंने निर्णायक तौर से उन्होंने तय कर लिया है। यहाँ गोमती ग्लैडिएटर्स की तरफ से उन्होंने कहा है, वेस्ट वाइकिंग की तरफ से वो कह रहे हैं कि आज तो जीत हमने ही ले रखी है। तो देखना अभी ये है कि कौन एक्चुअल में आज इस मैदान में अपने झंडे गाड़ेगा। तो मिता दर्शक का प्यार ही। बिल्कुल बिल्कुल। जो सपोर्ट मिला था उसमें, और मैदान सभी की नजरें अभी एक ही जगह स्थित रहेंगी। अब
वो क्षण आ चुका है मिथुन जी। बिल्कुल द मूवमेंट सबके दिल पे हाथ, अब जुबान खामोश और दिल पे हाथ। क्रॉस द फिंगर्स ऑल ऑफ यू। ये 3 महीने की जो मेहनत है दोनों ही टीम की कि फिनाले में भेजा। यहाँ देखिए वेस्ट वाइकिंग्स अपने साथ एक साथ जुड़ गए हैं कि कोई बात नहीं, आज जो होगा देख लेंगे। इवन इफ हम जीते हम हारे, आज एक साथ इस हार या जीत को हम सेलिब्रेट करेंगे। जीते तो सेलिब्रेट, हारे तो कोई बात नहीं। हर दिन अच्छा नहीं होता एक बात है। कहें, अगर मान लीजिए पेनल्टी भी ड्रॉ हो गया तो फिर और एक पेनल्टी होगी। आप अगर जो बात अभी बोल रहे हैं ना, पेनल्टी में और एक पेनल्टी हो सकती है, तो वो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि ये पेनल्टी भी मुझे लगा नहीं था होगा। दर्शक देखिए किस तरह से दर्शक मैदान के अंदर जा रही है, गैलरी से डायरेक्टली मैदान में, कि अब देखना है क्या होने वाला है। वो पैर जिनको गोल्डन बूट्स कहा जाता है एक तरह से, जिनके वो करिश्माई गोल निकलेगा। देखिए और आप देखिए जरा जो एक्साइटमेंट अभी दिखा रहे हैं दर्शकगण, यहाँ जाकर ऑलरेडी ग्राउंड तक पहुंचकर या गैलरी के एकदम सामने तक आ गए हैं कि अब देखना ये है कि कौन आगे जाता है। आई एम एक्साइटेड बट आई एम शॉक्ड इवन कि देखिए आप, हमने कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ लीग होगा, वो भी लाइव इतनी जगह में दिखाया जाएगा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में ऐसा हुआ है। एंड फुटबॉल में ऐसा भी एक समय गया है कि किला, आपको शायद याद है, किला आपको शायद याद है मिथुन जी, वहां एक ऐतिहासिक मैच हुआ था जहां 0-0 में गेम समाप्त हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक मैच था। और आज का ये ऐतिहासिक मैच जहां सेमीफिनाले में लाइक इतना अमेजिंग, यहाँ ऑलरेडी पेनल्टी लग रहा है और यहाँ दोनों ही टीम के पास समय है, टाइम है कि अब उनको दर्शाना है। तंबी को पहला शॉट वेस्ट विकिंग्स का, वेस्ट वाइकिंग्स को पहला शॉट मिला है मारने के लिए। यहाँ पर क्या वो जादू देखने को मिलेगा? चलिए, कैमरा तैयार, गोलकीपर तैयार, मारने वाला भी तैयार, तंबी। तो देखते हैं आज यहाँ कौन अपना झंडा बुलंद करता है। तैयार, गोलकीपर दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हाथ अब तैयार। तंबी यहाँ अभी पूरी नजरें गोलकीपर के ऊपर है हमारी। पहला गोल वेस्ट विकिंग्स। एंथम्बी ने जो शॉट खेला है ना, जजमेंट करना मुश्किल होता है, इतने सामने से अब इतने जोर से शॉट होता है। चलिए, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। अब देखना है गोमुती ग्लेडिएटर, 55 नंबर के जर्सी गोमुती ग्लेडिएटर। क्या ये जो रुख है किस तरफ आज जाता है? सोरोमिता, क्या ये गोल होगा? अभी फिलहाल हवाओं की रुख जैसे बदल रही है, ये रुख भी किसी क्षण भी बदल सकती है। तो देखना ये है कि क्या ग्लेडिएटर कर पाएंगे गोल। तैयार, दिल पे हाथ, खामोशी का मंजर, शॉट्स। ओ भाई साहब, सेव। यहाँ अब एक और एक मौका, वेस्ट वाइकिंग्स क्या ये मौका ले लेंगे या गोमती ग्लेडिएटर्स लेंगे? क्योंकि पहले ही क्षण में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। नाखुश। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन गुड इंप्रेशन सोरोमिता। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है ना फिर, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि क्या पता हो ना हो, पर कोई बात नहीं, उम्मीदें ना हारे, हमारी ऑडियंस उम्मीदें ना हारे। चलिए, यहाँ पर एक गोलदान,
यहां तैयार, अगेन अ गोल बाय वेस्ट वाइकिंग्स। 2 वेस्ट वाइकिंग्स 2, गोमती ग्लेडिएटर्स अभी तक 0। अभी गोमती ग्लेडिएटर्स में उनके पास समय है, उनको एटलीस्ट अभी एक गोल चाहिए फॉर श्योरली, वरना कहीं ना कहीं वो मौका हार जाएंगे। वेस्ट वाइकिंग्स का 2, दोनों ही पेनल्टी में उन्होंने उस क्षण को काम में लगाया। यहां और ये एक गोल, क्या बात! गोमती ग्लेडिएटर्स 1। यहां वेस्ट वाइकिंग्स 2 एंड यहां गोमती ग्लेडिएटर्स 1। वेस्ट वाइकिंग्स अभी ये मौका अगर हारते हैं तो गोमती ग्लेडिएटर्स के पास समय होगा ताकि वह टाई कर पाए। अभी गोमती ग्लेडिएटर्स के गोलकीपर सूरजजीत के ऊपर नजरें, सूरजजीत आपके ऊपर पूरी नजरें हैं। वेस्ट वाइकिंग्स 2 यानी कि 1 की बढ़ोतरी पर सैमुअल करेंगे अभी। सैमुअल अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे बच के रहना है। अगेन अ गोल, क्या बात! वंस अगेन यहां वेस्ट वाइकिंग्स 3 और गोमती ग्लेडिएटर्स 1। अभी एटलीस्ट गोल करना ही पड़ेगा गोमती ग्लेडिएटर को, उनको सोच के रखना है क्योंकि अभी उनके पास समय है। अभी एक भी मौका वो चूक नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक मौका उनका चूक गया है। क्या बात! व्हाट अ गोल, व्हाट एन अमेजिंग गोल। यहां 2 गोमती ग्लेडिएटर्स 2, वेस्ट वाइकिंग्स 1। वेस्ट वाइकिंग्स यहां 3, गोमती ग्लेडिएटर्स 2। ओके, सो गोमती ग्लेडिएटर्स अभी तक 2 में है, वेस्ट वाइकिंग्स 3 में है। वेस्ट वाइकिंग्स आपके पास समय है कि आप अभी एक भी गोल ना चूके क्योंकि अभी आप बढ़ोतरी में हैं। एक भी गोल चूका मतलब आप वहां मौका दे रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स को। और डेफिनेटली गोलकीपर को अभी बहुत सतर्क रहना है क्योंकि एक बार उन्होंने मिस कर दिया है ऑलरेडी। इतने बार उन्होंने 3 बार उन्होंने मिस कर दिया है, वो मिस नहीं होना चाहिए। अभी आपके ऊपर सभी की नजरें, सभी की जो प्रे है वो आपके ऊपर टिकी हुई है। And what a save! A save! Wow! A save! At last a save and अब अगर गोमती ग्लेडिएटर्स अगर इस को सदुपयोग नहीं कर पाए, इस जो चांस का सदुपयोग नहीं कर पाए तो कोई उनको नहीं बचा सकता क्योंकि अभी वेस्ट वाइकिंग्स ने एक चांस गवाया है। उस चांस को आपको पकड़ना है ताकि वो इक्वल हो जाए। इट्स द टाइम। नजरें गोमती ग्लेडिएटर के जर्सी नंबर यहां गोमती ग्लेडिएटर के प्लेयर की तरफ नजर। ये चांस
एनी हाउ लेना है आपको, और ये एक गोल यहां हो गए गोमती ग्लेडिएटर के भी 3-3. Oh my God, what is going on, man? What is going on? Like a tie. Wow. 3-3. Oh my God. चार चांसेस ऑलरेडी हो चुके हैं. आखिरी कुछ चांसेस में अब देखना है कौन जीतता है. चार चांसेस ऑलरेडी दे दिए गए हैं, जिनमें दोनों ही टीम 3-3 में है. अब एवरी गोल मैटर करता है. वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर तैयार, गोलकीपर के ऊपर नजर, एंड इट्स अ गोल. इट्स अ गोल. वेस्ट वाइकिंग्स 4, वेस्ट वाइकिंग्स 4. नाउ देखना है कि गोमती ग्लेडिएटर्स, आपके पास अभी वो मौका ही नहीं है कि आप अभी मौका चूक जाएं, क्योंकि वो अगर आप अगर आप मौका चूक रहे हैं तो आप वेस्ट वाइकिंग्स को समय दे रहे हैं. उनको वो मौका आप दे रहे हैं खुद से. वो कहते हैं थाली में खाना परोस कर देना, वो अभी आपको नहीं करना है. अभी आपके पास आखिरी समय है ताकि आप बता दें कि आप डिजर्विंग है फॉर द फिनाले पोजीशन. सौरभिता, जोश कम नहीं होना चाहिए. मैदान में जिस तरह का चेयरअप हो रहा है वो लगता है गोमती को फुल सपोर्ट में है. गोमती के लिए फुल सपोर्ट में. हमारे पीछे जो ऑडियंस है वो है, आप अगर उस साइड में हमारे डिग्निटरीज के पीछे ऑडियंस देखें, दे आर ऑल सपोर्टिंग टू वेस्ट वाइकिंग्स. आई एम वेरी श्योर कि आज कुछ अलग होने वाला क्या है. गोमती अभी वो लहरा सकेगी अपना परचम नंबर 5वां? क्या ये चौथा परचम लहरेगा? 5वां शॉट, क्या गोल होगा? जिनाई से और इसी के साथ we are having the winner of the semi-finals. हमारे सेकेंड सेमीफाइनल के विनर हमें मिल चुके हैं. सेकेंड सेमीफिनाले के विनर्स वेस्ट वाइकिंग्स. जीता हुआ मैच गोमती ग्लेडिएटर्स जस्ट इस पेनल्टी की वजह से हार गई. हारी हुई बाजी को जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं, और वो कर गई वेस्ट और वाइकिंग्स. बाजीगर आज जो है वो वेस्ट वाइकिंग्स. जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाई है यहाँ पर, ये काफी बताता है उनके जो जोश है वो कितना हाई था. और ये आज बता दिया, साबित कर दिया वेस्ट वाइकिंग्स ने कि आखिर के पलों में भी किस तरह से खेल का जो तरीका है उसको बदला जा सकता है. और बिल्कुल उसी तरह से बदल दिया. हमने कहा था कि आखिर के पल तक वेस्ट वाइकिंग्स को आप हल्का मत लीजिए. तो वेस्ट वाइकिंग्स का जो अगला मैच है फाइनल में, वो भी एक ऐसे टीम के साथ है जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद उस जगह पहुंची है, पराकाष्ठा का परिचय दिया है. लेकिन आज जितनी तारीफ की जाए वेस्ट वाइकिंग्स की वो कम है. जिस खेल में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप उसी जगह पर मार खा के, जब एन तंबी ने वो गोल किया था अपने राइट लेग से, लेफ्ट साइड से, देखिए वो झंडा फहराता हुआ वेस्ट वाइकिंग्स का मैदान पर खुशी का माहौल हर तरफ छाया हुआ है. और एक तरफ मायूसी, देखिए मायूसी नहीं होनी चाहिए गोमती ग्लेडिएटर्स को सौरभिता, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. क्योंकि इस खेल में आपने वो पूरी एफर्ट के साथ आए थे और ये एफर्ट आपका दिखाया है. आज भी आपने जीता, मैच हारा है ये कह सकते हैं, क्योंकि आज का मैच किसी के पक्ष में होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है. लेकिन आज वेस्ट वाइकिंग्स ने अपना पूरा एफर्ट दिखाया है मैदान पर, और हम उस सफलता को सलाम करते हैं, उस सफलता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जो वेस्ट वाइकिंग्स ने आज इस मैदान पे दिखाया है. और उसके मैनेजर है आज गोमती ग्लेडिएटर, अच्छे खेले हैं सुभाष जी, आपकी टीम ने बढ़िया खेला और है, बहकाया. और आप
इस बात को मानेंगे कि आपका टीम बहुत अच्छा एफर्ट डाली आज। क्या आज स्टार्टिंग से आपका था गेम, लास्ट मोमेंट में शायद वो मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि आपका टीम वो हो पाए, पर कोई बात नहीं, इट वाज गुड। इट वॉज ग्रेट। बिल्कुल आज वेस्ट वाइकिंग से जिस तरह से अपना मैच दिखाया है काबिले तारीफ। बात करें तो गोमती ग्लेडिएटर उसने भी जबरदस्त खेल खेला है, लेकिन वहां थोड़ा सा डिफेंस से थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया था, तो वो भी मानना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की हल्की चूक के साथ ही खेल को जिस तरह से निखार के लेके गए वेस्ट वाइकिंग्स, वो मानना पड़ेगा। आज इस खेल का जिन्होंने आज देखा है पूरा मजा दिया है कि लास्ट में पेनल्टी शॉट्स में किस तरह से गेम को एक तरफा बना दिया है वेस्ट वाइकिंग्स ने। क्या कहेंगे सौरभ मेहता आप, क्या ये खेल एक तरफा था या लड़ाई भी थी इसमें? मैं एकदम ही सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दोनों ही टीम ने बढ़िया खेला है। पहले ये गेम एक्चुअल में कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास गेम है, क्योंकि इस गेम पता चला है कि कैसा एक्चुअल में फुटबॉल गेम होता है। फुटबॉल एक्चुअल में ही ऐसा होता है। फर्स्ट हाफ में हमें फुल्ली लगा था कि गोमती ग्लेडिएटर्स जीतेंगे। सेकेंड हाफ में हमने ट्राई किया, हमें लगा था कि वेस्ट वाइकिंग्स के पास वो चांसेस हैं कि वह वो ले सकते हैं, बट टाई हुआ 3 मिनट पहले। सोचिए जरा, टाइमिंग जरा देखिए, 3 मिनट पहले हुआ, 3 टाई हुआ, उसमें भी 3 मिनट पहले जो टाई हुआ उसमें भी पेनल्टी में आपको ऑलरेडी ये जो चेंजेस होते हैं पेनल्टी में, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। उस ऑप्शंस में अभी एक भी गोल उनके लिए बहुत मायने रखता है। इतने शॉट्स में उन्होंने एक गोल जो मिस किया, गोमती ग्लेडिएटर ने जो पहला ही गोल मिस किया, उससे कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया। दैट्स व्हाई आई गेस थोड़ा उनका वो चेंजेस आ गया, बट स्टिल दे डिड रियली वेल, दे प्लेड रियली वेल। नहीं देखिए, गोमती ने वो जगह पे कोशिश तो की थी, लेकिन वहां पर उनका जो डिफेंस था वो अगर वहां पर रहता, क्योंकि वो शॉट वो आगे ले जाके खेला, फिर हल्के से इस राइट लेग को इस तरह से बूट से उससे किस तरह से उस राइट कॉर्नर पे पहुंचा दिया एन तंबी ने। वाला थिंग पेनल्टी हुआ था। अब बिल्कुल कैप्टन वेस्ट वाइकिंग्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिस तरह से अब इनका सुनेंगे इनसे इनका हाल कि इस गेम में क्या प्रस्तुति थी। Captain of the winning of semi-final round, the 22nd match here at Komaling Stadium. Today, we will talk with him how he has actually managed to win the game. Botini Paiman kha borni team busus orti ki bono support khaika taya ba hakeno nung tini Paiman ne one sugire tomani last moment no ne je last kaisa score bai nor draw thangka bom haima tomani puilawo पुल सांदा बुखाराग ताप इनके खेला हार तो जों हार गसिया जों लास्ट गोल माने हने आने बुखा आं वान सुगा जों पुइतो तंगो तिनि जों प्लायंग नाय हने। अच्छा जेफ्रु पुइला फ्रु नरक न काइसा गोल रजागै नरक सेकाङै थांमायang तंगो जरा first half नरक खादा बाइखा ना खा बायावैनो नरक सेकाङै थागा जों गोल जाकफानो फर्स्ट टाइम जों खाबाया लास्ट टाइम 10-15 मिनिट तंफ्रो जों हायनो गोल माने जों साइमान दङ माने सिनि पुइतो दङ आबनि बिसिङो जों जे खेला पास पॉइंट जों चेष्टा खायै थंगै पाइनाय हनै जों वानसगै थंगो तिनि मातो अब हाइके थांनाय काइसा मैच लेफुङावो जेफ्रुंगो आफ्रुबो नरनि लास्ट मोमेंटो दुइटा गोल रुवै नर टोटल 3टा गोल रुवै नर ड्रॉ थाउ तिनि बो अलमोस्ट आम हाइनो अंखा जन काइसा गोल रुवै नर ड्रॉ खा तिनि जेहेतु पेनल्टी तंमा बाय नर पाइ मान खा बाहाय मा तं बेला बेला तंथबा जों तिनि सेमि फाइनाल पायै फाइनाल खामानि बागै अब हायता अब बेले के हामबाय तामने हिनबा नर सेमी फाइनल राउंड पाइ ताबो फाइनल बखा थांगै दङ नर बेले के हामबाय नरनि टीममेट्स रंनां नुङै नानो मुसुङो I'd like to call all the winning team for the semi final today at West Vikings, the semi final. I'd like to call all the winning team to please come here with us. Also,
Oro je paine rona nungin hanam so paine team rono tai aba haikeno sini coach tai aba haikeno boni team manager rogoro sungme baksa norbo sing kisa kok salen phedi tabuk sing kok salenai sini team ni coach yang o phaikan ke belai ka hamnai sani bung bang kisa khanai nanai sani bung sagrari Somerjit Deborma. Somerjit Deborma, very congratulations to you winning team and norok je pula pro norok goal score khlai khlaiako first half afro norni reaction bahai tongmani Ang to belay no confidence. Last two pass ang confidence kay tongo ang jesa kay pano o team no ang winner ang na hini. Final lo thang na bage ang pura ani confidence tongo. belai ka hambai norok tini je semi final round norok paika tai tini norni celebration bom haing no norok bom haike tong tholai nei hani wan so lai tong Sung to tini belay no tong thokjak karon hengke sini west final lo kamani bage belay no sung belay khushi tini. belai ka hambai boh kai team manager khna team assistant coach I'm sorry team assistant coach nini bom hai role tongmani tini ni je paimani je match nini role bahai tongmani kisa sai khana gari Ani rule sengke ang je pro ani player rok no half time mano borok je pro aing wo phayo apro sini je weak point tongmani abono no tui nai kisa borok no ang phan ka oxygen ri kata ka ang no chaka thajingo interview o seng jeska pano team tini jeska pano seng pai matia ka nai ka abono nang kata sar tini jodi draw ing yan kai tini jodi draw ing yan kai pai da man khamo tama wan suk mani drong ya ka to seng hojo seng seni tha kamo hai pano ka jo suno subai tongo seng ka jo no ba hamel thai tongo suno suba mani bagai nai abono bagai nai pura full team nang hambai ro tai west ni oro je phainai sini sabota rong no bang hambai ro suno sabot khlainai subai tong phai bagai khorang mai belai kana hambai final bagi bom hai preparation tong nai final le bagai seng final jeska pano champion na bagai seng hardly seng coaching khlainai ar practice khlainai belai ka hambai senior assistant coach no tayaba haikeno ladies and gentlemen this is the winning team for the semi final let's see you cheer up okay thank you so much and seng norno malai manai te jain hai finale ni dino finale ni date tawsu fix nya ko seng kok salai nai tai ani hindi commentator yang Mithun Das tai Soromita Bomik barono seng kok sanan bagi jara ruane Excuse me, Samuel. Here's the winning dance. Today now. Step. It's begin. This is the Josh of high. This is the winning dance of final. Oh, cheer up everyone. 10 number jersey, Samuel. Thank you, Samuel. This is the team performance, man. और बढ़िया ये देखिए वो डांस ये सेलिब्रेशन फाइनल का ये देखिए खंगारी बढ़िया वही उत्तेजना वही सरखरोश वाह क्या बात जज्बा देखिए हाई पोटेंशियल देखिए दिमाग टेक्निक सब कुछ ये डांस रुकेगा नहीं फाइनल में भी ये चीज हमें देखने को मिलेगा शायद हम आशा रख सकते हैं वेस्ट वाइकिंग्स से तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरमिता आज के मैच सौरमिता प्लीज आज के लिए आप क्या कहेंगे मैच का आंखों देखा हाल आपने पूरा मैच देखा पूरा लीग देखा कैसा लगा आपको और क्या क्या अभिप्राय है आपकी अभिप्राय शायद मैं कह सकती हूँ कि इट वॉज अ टूर्नामेंट लाइक ये वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट था त्रिपुरा में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ TTA DC के द्वारा हुआ व्हाट एन इनिशिएटिव सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट बट
It was a tournament, like a tournament, and definitely world class. And ऐसा matches ही हमें चाहिए to to celebrate, to actually celebrate football. So definitely it was a match, an absolutely amazing match. And ऐसा ही एक और match अब हम देखेंगे in the finale, ladies and gentlemen. चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं. Once again we'll meet, but कब? फिनाले के दिन with West Vikings and Dhalai Antlers, क्योंकि हमारे पास दोनों फाइनल टीम्स हैं. Ladies and gentlemen, thank you once again for watching us. Thank you once again for supporting us. And thank you once again हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ने के लिए. फिर से जुड़ेंगे, फिर से लाइव आएंगे इसी खुमलुंग स्टेडियम से. तब तक के लिए शब्बक है, मिथुन जी है, मैं हूं शौरमिता, मिल्टन जी है यहाँ. हम तीनों की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. जो हमारी ऑडियंस है उनको शुभकामनाएं अगले कुछ दिनों के लिए. तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन. शब बखैर.